Hello, dear students. Welcome to the class today. So, second chapter history. As you know, we have started. A lot of points we have discussed. Where we are talking about the European history. European history, social, because the chapter itself says socialism in Europe and the Russian Revolution. Yes, of course, Russian Revolution is a big incident in history which has changed the complete scenario. काफी सारी चीजें बदल गई, लोगों के सोचने का तरीका एंड द स्टेज वाज सेट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये जो सारी चीजों की शुरुआत हुई, एक्चुअली ये शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई, लेकिन इम्पैक्ट इसका आगे के टाइम में भी महसूस किया गया. लॉट ऑफ थिंग्स वेर विटनेस्ड further on also. Got it, children? Now what happens? Last class we talked about two of the people who were talking about socialist society. Socialist society का मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से समझना है, children, you have to understand it in this manner that socialism has come in Europe. ठीक है, सोशलिज्म तो यूरोप में आ गया, सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी द फॉर्मेट? अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इफ पीपल आर टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी, देन दिस इक्वालिटी हैज टू बी इन अ मैनर वेयर everybody is given an equal chance. What is the problem? Two things were there. एक तो Robert Owen had said, and another was Louis Blanc. According to these two people, कि the property that is there, जितनी भी property, suppose जमीन है, industries है, and all that belongs to the people, I mean the rich people, the kind of enjoyments they have in their life, उसका कुछ पार्ट भी गरीबों को, जिनके वजह से वो एंजॉयमेंट है, the enjoyment that exists in the life of the rich people, it is because of the poor. Simple में समझो. So they said कि property should be publicized. Property should be owned by the group, not by the individual. एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं देना है, एक ही आदमी के हाथ में सारी चीजें नहीं देनी है. Okay? So, Louis Blanc and Robert Owen, two of them gave this theory of cooperatives. There was something that was very common, was theory of cooperatives. अब ये cooperatives क्या है? Cooperatives में that the complete property would be owned by the community. सारे लोग मिलके प्रॉपर्टी ओन करेंगे एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस. अरे लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था. सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन सम इंडस्ट्री, एक कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने एक इंडस्ट्री खोली. नाउ द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, दे से सारी इंडस्ट्री हमको दे दो. इज इट पॉसिबल? No, my dear students, practically it is not possible. थोड़ा सा impractical solution था. It was not a practical solution. इसीलिए इसके ऊपर बार बार objection आ रहा था. It was not explained in a proper manner. Cooperatives were to be the association of people who produce goods. साथ में मिलके goods produce करेंगे, and जो भी whatever is the profit according to the work done by the members, वो उनको बांट दिया जाएगा. Okay, means profit would be shared
by the workers. खाली ओनर्स ही एंजॉय नहीं करेंगे, इनकी दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इवन द वर्कर्स विल ऑल्सो एंजॉय. यही थ्योरी को लेके ये लोग आगे बढ़ रहे थे. दे वे आर प्रोग्रेसिंग विद दिस थ्योरी इन माइंड. फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में लुई ब्लैंक वॉज फ्रॉम फ्रांस एंड रॉबर्ट ओवन वॉज फ्रॉम यूएसए. सो ही वॉज फ्रॉम फ्रांस and he was from USA. लेकिन थ्योरी दोनों की एक ही थी. Ultimately, both of them were giving the same theory. जिसने जितना काम किया है उसको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए. I have invested 10 lakh rupees. I have established the industry. जो प्रॉफिट हो रही है थोड़ी बहुत तो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि I am enjoying, I am having a nice time and the poor people are having a bad time. उनकी लाइफ खराब हो रही है, मेरी लाइफ अच्छी हो रही है. दिस इज नॉट डन. गॉट इट? इस थ्योरी को लेके लोग आगे बढ़ रहे थे. इन द मीन टाइम केम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स. आई होप दैट यू माइट हैव हर्ड द नेम. वाज कार्ल मार्क्स. Got it? Karl Marx is there and he 1818 to 1883 इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है. He is the person who organized the working society. Controlling the property by few individuals. कुछ लोगों के हाथ में सारा पावर है और कुछ लोग बहुत गरीब हैं. This theory was discarded by Marx. मार्क्स ने कहा दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी, गलत चीज है. एंड इसी में सपोर्टिंग कार्ल मार्क्स केम अनदर पर्सन हु वाज Friedrich Engels. He was contemporary to Karl Marx. Means जिस समय Karl Marx exist कर रहे थे उसी समय Engels was also there, who was there in this world from 1820 to 1885. पहले ये थोड़े से पुराने लोग थे. पुराने मीन्स कि they were in the olden times. इनका टाइम पीरियड, लुई ब्लैंक तो स्टिल ही वॉज कॉन्टेम्पररी टू. लुई ब्लैंक का टाइम था 1813 to 1882. लेकिन रॉबर्ट ओवन वॉज क्वाइट ओल्ड. 17th में था. his timing was in the 1771 to 1858. he was quite senior. 1771 to 1858. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग थ्योरी दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, डिस्कार्डिंग द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्ड टू वन पर्सन, वन ग्रुप. इस थ्योरी के से थोड़ा अलग एक थ्योरी ये लोग एस्टैब्लिश कर रहे थे, जिसका की मीनिंग था विच मेंट दैट systems have to change. The systems that are existing, this needed a change, an overhauling change, and this is what is going to bring revolution in the society. इन्हीं सब चीजों की वजह से सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा एंड सोसाइटी विल चेंज, दैट इज फॉर श्योर. अब कार्ल मार्क्स ने क्या किया? इन्होंने कहा, मार्क्स सेड कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. पहले मार्क्स की थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली हिज थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only from class 9 point of view but from GK point of view also. You should know about the theory of Karl Marx. So let's discuss the theory of Karl Marx. When you understand the theory of Karl Marx, lot of things would be clear to you. काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. So he said that theory of Karl Marx. Please remember his name.
वन ऑफ द ग्रेट थिंकर्स ऑफ आवर टाइम्स, मतलब उस समय के बहुत बड़े थिंकर हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी उस पे बेस करके बहुत सारे लोगों ने आगे, मेनी पीपल इन फ्यूचर इन फर्दर हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। इनके काम पे काफी सारे लोगों ने रिसर्च वर्क किया कि आखिर मार्क्स कहना क्या चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली इज द थ्योरी ऑफ मार्क्स, व्हाट डज ही वांट टू से। तो पता चला कि मार्क्स इज सेइंग दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। Industrial society was capitalist. Capitalist, capital, money. ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है? मनी, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग द कैपिटल, जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर द कैपिटलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट है। एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज। Capitalist, obviously, if I have invested money and open a factory, so obviously it's my money. So capitalist owned the capital invested in factories. Okay? And फैक्ट्री तो भाई लगा दी। अभी देखो यहां थ्योरी समझो, टेक्निक समझो। फैक्ट्री लग गई, बट द प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। इन फैक्ट्रीज में जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कहां से आ रहा है? दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। ये वर्कर्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड। भाई इंडस्ट्री मैंने लगा दी और लगा के जाके सो जाऊं। वर्कर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं। वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक वर्क वॉज हैपनिंग। दिन रात, बिलीव मी चिल्ड्रन, 24 आवर्स वर्क वॉज हैपनिंग। तो जो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, उसको शुडंट द प्रॉफिट बी शेयर्ड विद दैट पर्सन हु हैज मेड द इंडस्ट्री सो प्रोडक्टिव? द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम, देयर एनर्जी, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड विद देम। सो कंडीशन ऑफ वर्कर्स ये तब तक इंप्रूव नहीं होगा एज लॉन्ग एज प्रॉफिट क्या हो रहा है? कैपिटलिस्ट से भैया इंडस्ट्री हमारी है, प्रॉफिट जितना भी है वो मेरा है। सो कार्ल मार्क्स सेड दैट दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट विद द वर्कर्स। डिड यू गेट इट? एंड वर्कर्स की कंडीशन खराब होती जा रही थी। कंडीशन ऑफ वर्कर्स could not improve till they share the profit with the workers. ये दे कौन है? दे आर द ओनर्स। मैंने 10 लाख रुपए इंडस्ट्री में लगाए हैं, उस 10 लाख रुपए का द प्रॉफिट दैट इज कमिंग, आई नीड टू शेयर इट विथ माई पीपल, जिनकी मेहनत की वजह से इतना पैसा आया है, इतना पैसा बना है। आई कैनॉट पुट दैट मनी, वो पैसा मैं दबा के नहीं रख सकती हूं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन्होंने कहा वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा। एंड हाँ भाई, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी।
I have invested, so I will show the dadagiri. Haha, simple language I am explaining. कि अरे तुम काम कर रहे हो मेरी इंडस्ट्री में, तो तुमको क्या मैं सारे पैसे दे दूं? आपको आपका सैलरी मिल रही है, दैट्स ऑल. बट देन द वर्कर्स विल से खाली सैलरी से नहीं होता है. आपने यू हैव इन्वेस्टेड 10 lakh, but then you are getting 50 lakh because we are investing our time and money. So from that 50 lakh, you have to share the profit with us. Did you get the concept? I hope the concept is clear to you. Yes, that was the idea of the workers. They said आप अपनी प्रॉफिट को शेयर कीजिए. एंड मार्क्स बिलीव्ड कि to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a socialist society. हाँ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटाना है तो वर्कर्स हैव टू construct a socialist society. Everybody is treated equally. किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा. Equality would be practiced with everyone. Okay? Every property was socially controlled. सारे लोग प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं. And this would be a communist society. ये जो सोसाइटी होगी, प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल है, मीन्स 10 lakh rupees I have invested, but I am getting a 50 lakh rupees that should be shared with the workers. पूरा नहीं, but some percent needs to be shared. ये जो सोसाइटी होगी, this society where workers are constructing a socialist society, जहां पे property was socially controlled, where property was socially controlled. सबके पास होगा पावर. प्लीज अंडरस्टैंड. ऐसी ही सोसाइटी बनानी है. Such a society has to be made where the property is controlled by not an individual but everybody, and this would be a communist society. इस सोसाइटी को हम क्या कहेंगे? It would be the theory of Karl Marx was saying कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटा के क्या एस्टैब्लिश करना है? व्हाट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड? द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट सोसाइटी is to be substituted by communist society. ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे एवरीबडी इज इक्वल, सबके साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है. वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट. अब ये जो सोसाइटी है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज अ सोसाइटी विच वाज कन्फ्लिक्टिंग द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. पैसा इन्वेस्ट करके दादागिरी दिखाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा. एक्चुअली नहीं चलेगा. दे वर कन्विंस्ड communist society was the natural society of the future. So communist society was the natural society of the future. आने वाले टाइम्स में the complete ownership would be of the workers. Workers will triumph. Workers की जीत होगी. इसका मतलब ये नहीं कि ओनर्स की हार होगी, but then owners have to compromise. अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे दम पे नहीं है. खाली पैसा इन्वेस्ट करके I cannot be the king. The people who are continuously day and night working and doing so much of hard work, I need to share the profit with them.
जो फायदा मुझे हो रहा है उस फायदे में उनका भी शेयर बनता है, जिसको कि मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ। गॉट इट? तो ये था कार्ल मार्क्स की थ्योरी। एंजल्स वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। मेजरली कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इनकी थ्योरी जो है लगभग बराबर ही थी। ओके, एंड इन लोगों ने, बिकॉज द आइडियाज दैट वाज गिवन बाय लुई ब्लैंक एंड रॉबर्ट ओवन, दीज वेर द पीपल हु सपोर्टेड दैम। ये मतलब कार्ल मार्क्स और इन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स ने बाद में इनके थ्योरी को सपोर्ट किया। गॉट इट? तो अब देखो, नाउ यू सी द फाइट एंड द स्ट्रगल दैट वाज स्टार्टेड बाय लिबरल्स, रैडिकल्स एंड रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स अभी नहीं है, लिबरल्स एंड रैडिकल्स ने जो फाइट शुरू किया था, इट वॉज टेकिंग अ शेप ग्रेजुअली एंड स्लोली। उसका एक तरीका बन रहा है, उसका एक आइडिया बन रहा है, जहां पे द पीपल वुड बी ट्रायम्फेंट, आम आदमी की जीत होगी। सो मार्क्स सेड कि भैया प्राइवेट ओनरशिप शुड फिनिश, capitalist exploitation has to finish, and workers had to make a socialist society. Got it? जहां पे कि पूरा प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड एंड ये सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। वर्कर्स वुड बी हैप्पी, ऑब्वियसली सारा कुछ वर्कर्स के हाथ में होगा। व्हाई दे शुडंट बी हैप्पी? दे वुड बी द हैप्पी पीपल। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सच अ सोसाइटी। मेनी पीपल सपोर्टेड दिस आइडिया। अब शुरू हुआ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। थ्योरीज आ गई, इन थ्योरी को सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना कुछ लोगों को। खाली ये थोड़ी कि मैंने थ्योरी दे दी उसके बाद सारे लोग आंख बंद करके बैठ गए। नो, there has to be some people who need to support this, and by 1870s what happened, socialist ideas spread all through the Europe. लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। लोगों को why पसंद आया? Because majority of the people were the workers. Owners, पैसा तो बहुत कम लोगों के पास था। So the people who are the owners कब तक वर्कर्स को दबाएंगे? How long will they dominate the workers? तो अब वर्कर्स के हाथ में धीरे धीरे सारा पावर आ रहा था, एंड दिस वॉज अ ट्रायम्फेंट सिचुएशन फॉर देम। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल। अब इन्होंने क्या किया? इसको फॉर्मलाइज करने लग गए। अभी तो खाली थ्योरी आई थी, लेकिन हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकल, खाली बुक में पढ़ के नहीं समझ में आएगा ना, इट हैज टू बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड। सो फॉर दैट पर्पज सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल। Socialist formed an international body called Second International. Please remember, what was Second International? What actually was Second International? You need to remember this explanation that the socialists, they formed an international body and this body was called as Second International. Got it? अब क्या हुआ? England, Germany, all these places, they started forming association to fight for better. अब workers को समझ में आया कि भैया हमारे को तो हक मिलना चाहिए। Workers started fighting for better living and working conditions. Workers in England, Germany started fighting for better working conditions. इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। अब हमारी बेटर वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, भैया रहने के लिए घर दो,
अच्छे से खाने के लिए खाना दो, सैलरी भी सही दो। स्ट्रगल शुरू हो गया, फाइट शुरू हो गई। कब तक बचेंगे? दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। अब इन्होंने क्या किया? कोऑपरेटिव वॉज बिकमिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस फिर एस्टैब्लिश जहां पे वर्कर्स को पूरी पूरी मदद मिलती। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। They set up funds to help members at the time of distress. अगर कोई परेशान है तो फंड्स, कितनी बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है ना, घर में कोई बीमार है, किसी की शादी है, कुछ भी सम और दी अदर कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है। तो एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स 12 से 13 घंटा काम कराते थे। दैट वाज इनह्यूमन। ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम कैन वर्क 6 to 8 hours a day, but 12 to 13 hours they were working, and they demanded reduction of working hours। ठीक है, एंड राइट टू वोट। अब सोशल राइट्स के साथ दे स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स एज वेल, कि वर्कर्स हैं, इतने लार्ज नंबर में हैं, सो व्हेन द वोटिंग इज हैपनिंग दे शुड गेट द राइट टू वोट। जर्मनी में क्या हुआ? देयर वॉज एसोसिएशन फॉर्म्ड विच वॉज क्लोजली कॉल्ड एज SDP, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब क्या हुआ? इन लोगों ने वोटिंग में भी इन्वॉल्वमेंट किया, एंड इन जर्मनी SPD was formed। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने पार्टी बना ली। They participated in the elections and they were very much winners in that. They won the parliamentary seat. By 1905, socialist and unionist, they formed Labour Party in Britain. Look how छोटा सा organization, now it started becoming big. यहाँ पे जर्मनी में SPD was formed and other places liberals and radicals ने मिलके क्या किया? By 1905 socialists and trade unionists formed Labour Party. Name itself has got the information Labour Party. मजदूरों की पार्टी थी, लेबर की पार्टी थी इन ब्रिटेन। ये तो बन गया ब्रिटेन में, एंड ब्रिटेन में लेबर पार्टी फॉर्म हो गया, एंड फ्रांस में, एंड इन फ्रांस it was socialist party। So the struggle has started, dear students। इसके बाद क्या हुआ? We'll be discussing it in the next class। So students, we discussed about the theory of Karl Marx and Friedrich Engels, and after discussing this theory, the end point was that कि हमको एक communist society बनाना है। We need to find out a communist society where workers are given due respect। जो मज़दूर हैं, जो कामगार हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक्चुअली ये हक की लड़ाई है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लॉट ऑफ सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड
today's time are capitalist society including चाइना में ये है, रशिया में ये है, that people at Germany is a society जहाँ पे कि the capitalist the communist societies are very active. ये एक एक्टिविटी है, इसको करने की कोशिश करना. लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़. सपोर्ट बहुत बढ़ा सोशलिज्म के लिए. ये जो एक्टिविटी है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड एक्टिविटीज़, बट प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दीज पार्टीज़ जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ था, आगे के टाइम में काम आएगा. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.